Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, money and banking, in which we'll first study about banking. In this video I will be explaining about the central bank. So here first बैंक है क्या? Bank acts as a bridge. एक bridge की तरह काम करता है between those who save, those who deposit their amount in the bank and the users of capital, that means investors. जो बैंक में हम लोग जैसे if we are savers, we'll save our deposit our money in the bank, and bank will use that money to give further loans to those who needs to invest, right? So this activate the idle resources. जो मेरे पास खाली resources है जो किसी काम पे नहीं आ रहे, मैंने बैंक में जमा कर दिया. बैंक उन idle resources को आगे productive purposes के लिए use करता है. Then central bank. What is the central bank? अब देखो, central bank is an apex institution in the banking and financial structure. सबसे बड़ा institution, main institution जो है वो central bank होता है. It plays a leading role in. अब वो काम क्या क्या करता है? Organize करता है सारे banks को, regulate करता है, control करता है, supervise करता है, देखरेख करता है उसकी, developing the banking and financial system of a country. जो हमारी कंट्री का जो भी फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम है उसको कौन डेवलप करता है? सेंट्रल बैंक. नाउ हियर सेंट्रल बैंक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं. लाइक इंडिया वी आर हैविंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंग्लैंड वी आर हैविंग बैंक ऑफ इंग्लैंड. यूएसए फेडरल रिजर्व सिस्टम. सो आवर सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच कंट्रोल्स, facilitates, organizes the financial system and the banking system. What are the functions of the central bank? Monopoly over note issue. यहाँ पर कोई भी करेंसी अगर इशू करनी है तो कौन इशू करता है? Obviously, central bank has the only the central bank have the monopoly to issue the new currency. No other bank can issue new currency, right? Only central bank is having the authority to issue new currency. Then bankers bank. Central bank acts as a bankers bank. That means other banks. बैंकों का बैंक कौन है? If the banks, commercial banks need something, who will help? Central bank. So central bank is also known as the bankers bank. Apart from this, central bank is the government's bank also. How government's bank? It acts as an advisor or banker to the गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का सारा पैसा, गवर्नमेंट का लोन्स, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये सारे काम कौन करता है? कोई कमर्शियल बैंक नहीं करता, ओनली द सेंट्रल बैंक. एंड फोर्थ इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है तो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना, अगर कम है तो क्रेडिट को कैसे बढ़ाना है. तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक. एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग दीज थ्री functions: monopoly over note issue, bankers bank, and advisor and banker to the government. Although controller of credit is a very important function of the central bank, but CBSE has deleted it from this chapter, but we will be continuing with the controller of credit function as a monetary policy to control the inflation and deflation in our next chapter. Next, in the sense, we are having a chapter excess demand and deficient demand, so we will be continuing with this topic in that chapter, right? So this topic you will study, but afterwards. So in this chapter, central bank will be studying these three functions of the central bank. Now first is monopoly over note issue. That means central bank having is the sole authority. Sole authority means खुद उसके पास सिर्फ एक अकेला उसी के पास ये authority है to issue the new currency. So given the sole monopoly of issuing currency, sole authority to issue the currency. So these notes circulate throughout the country as legal tender money. Any note, any currency, if RBI says that this will not work, or the government says that this will not be working as a legal tender, that money will definitely not work. Like demonetization came in 2016, right? उन्होंने बोल दिया कि 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे. Although there were so many notes in the economy, but from that night 1000 और 500 के नोट नहीं चले. तो लीगल टेंडर मीन्स वो मनी जो लीगली हमारे इकोनॉमी के अंदर चल रही हो. अगर किसी भी इकोनॉमी को लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है कि अब वो लीगल टेंडर नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ मनी. वो सिर्फ एक पेपर की तरह हो जाएगा. आप किसी को 1000 का नोट तो नहीं लेगा, वो क्या बोलेगा ये कोई पैसा है, वो सिर्फ एक कागज बन गया, राइट? सो उसके ऊपर आरबीआई की मोहर होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मोहर इन द सेंस ये नहीं कि उसके ऊपर ठप्पा होना चाहिए, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये बोल रखा होना चाहिए दिस इज द लीगल टेंडर.
रीजन क्या है? इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, कितना नोट सर्कुलेट हो रहा है सारा, अगर एक ही हाथ से निकलेगा तो उसे पता होगा कि आज तक कितना नोट छपा है, कितना नोट हमारी इकोनॉमी के अंदर गया है। वहीं अगर 3-4 हाथों में दे दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना जो मनी है सर्कुलेट हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन में जैसे हमको पता चल गया था कि कितना नोट हम लोगों ने दिया और कितना वापस आ गया, मोस्टली सारा ही वापस आ गया था, राइट, एक्सचेंज होने के लिए। सो इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन एंड गिव्स द सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ जाता है? आरबीआई का, दैट मीन्स हमारे सेंट्रल बैंक का। सेकेंड इज बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे काम करता है? इट एक्ट्स एज एन एजेंट, इट सेल्स एंड बाइज फॉरेन करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं आके बेचती खरीदती, बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन काम करता है? सेंट्रल बैंक। इट इशूज न्यू लोन्स एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज एन एडवाइजर, it advises to the government on financial matters, monetary matters and various others economic policies। जो दूसरे इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फाइनेंशियल में कोई भी मैटर है उस पर गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करता है? सेंट्रल बैंक। देन बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम भी करता है। इट रिसीव्स द डिपॉजिट्स ऑफ कैश, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एटसेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ जमा करेगी? सैलरीज है, सब कुछ कहाँ जमा करेगी? सेंट्रल बैंक में। And it extends loan. It provides short-term credit to the government. If government needs the credit, central bank provides the credit to the government by printing money against its securities. Mind it, central bank always takes some security. Not only central bank. If you go to the commercial bank for a loan, commercial bank will also take something as a collateral or security from you, right? So central bank also takes some securities or collateral from the government and bills to finance government deficit। गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के पास जब कमी हो जाती है पैसे की, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लोन्स एडवांस करता है सेंट्रल बैंक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन कैसे करता है सेंट्रल बैंक। नाउ नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। अब बैंकों का भी बैंक, इट मेंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल द बैंक्स एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटीज। बैंक के डिपॉजिट अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक्स के, चाहे वो एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी, जितने भी बैंक है उसके डिपॉजिट्स रखता है और उनको गाइडेंस देता है कि किस तरह से आपने अपना काम करना है। एंड इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, ध्यान भी रखता है कि सारे बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट। अर्लियर द सेंट्रल बैंक वाज ओनली एक्टिंग एज अ रेगुलेटर, वो सिर्फ एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, बट अब वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, देख रेख भी करता है और उनको थोड़ी सी छूट भी दे दी। पहले छूट नहीं थी, अब कमर्शियल बैंक्स को थोड़ी सी छूट दे दी इफ दे वर्क अंडर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक। सो इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, बैंक लाइसेंसिंग, ब्रांच बढ़ानी हो, एक्सपेंशन करना, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को देख रेख कौन करता है? सेंट्रल बैंक। रिलेटेड टू अमालगमेशन एंड लिक्विडेशन, कोई दो बैंक्स मर्ज हो रहे हों, लिक्विडेट हो रहे हों, अलग हो रहे हों, तो उन सबको कौन देखता है? सेंट्रल बैंक। पीरियोडिक इंस्पेक्शन कौन करता है बैंक्स की? सेंट्रल बैंक, राइट। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर हमें हमारे कमर्शियल बैंक्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, सपोज, वैसे हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि एक बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं, सारे के सारे अकाउंट होल्डर एक साथ नहीं आ जाते अपना पैसा निकालने के लिए, राइट। तो इसीलिए बैंक्स बहुत रेयर होता है कि बैंकक्रप्ट हो। बट अगर बाई चांस सारे के सारे एक साथ आ जाए पैसा निकालने के लिए, बैंक के पास तो पैसा नहीं है, बैंक तो अपने पास लिमिटेड पैसा रखता है, वो जो रिजर्व रख रहा है वो भी सेंट्रल बैंक के पास रखता है अपना, है ना। तो क्या करेगा बैंक? बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और अगर उस टाइम पे उसे हेल्प चाहिए, लोगों को पैसा देना है, कैसे करेगा? तो एट दैट टाइम द लास्ट थिंग कौन उसे हेल्प करता है? सेंट्रल बैंक। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, banks are required to deposit a fixed ratio of the net total liabilities, that the CRR, with the central bank। टोटल जितना उसके पास पैसा आया है उसका कुछ परसेंट जितना भी आरबीआई ने डिसाइड किया होता है वो हमें सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्यू टू सेटलमेंट विद अदर बैंक्स। और अगर दूसरे बैंक्स के साथ कोई क्लियरेंस होती है, इसके बाद आप पढ़ेंगे, दूसरे बैंक के साथ अगर कोई भी क्लियरिंग करनी है, एक बैंक का दूसरे बैंक में चेक है वो क्लियर करना है, तो भी बैंक जो है बैंक्स का जो एक्सेस रिजर्व है वो भी सेंट्रल बैंक के पास पड़ा होता है, वो काम करता है। नाउ द सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक कैन बी यूज्ड टू मेक एडवांसेस टू द बैंक्स इफ टेम्परेरीली इन नीड ऑफ फंड। अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, भाई
पैसा चाहिए, कहाँ से ले, तो सेंट्रल बैंक जो है, जो सरप्लस फंड एक्सेसिव रिजर्व्स उसने रखे हुए हैं बाकी बैंक्स के, वो एज अ लोन वो बैंक्स को दे सकता है. इट मीन्स दैट इफ द कमर्शियल बैंक फेस, जैसे मैं आपको बताया ना, कोई हेल्प नहीं कर रहा तो फाइनली किसकी तरफ नजर होती है, सेंट्रल बैंक की तरफ, प्लीज आप तो मदद कर दो. तो इट मीन्स दैट इफ द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट. आखिरी उम्मीद कौन होती है? सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक एट दैट टाइम एडवांसेस लोन्स टू सच बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. कुछ सिक्योरिटीज रख के सेंट्रल बैंक जो है लोन दे देता है. क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस एंड ट्रांसफर, क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट. ये क्या है कि जब दो बैंक्स का आपस में कोई चेक है या ड्राफ्ट है, उसको सेटल करना. एक एग्जांपल देते, सपोज एक का अकाउंट पीएनबी में है और एक का अकाउंट एसबीआई में है. एक कस्टमर है, एक कस्टमर का अकाउंट पीएनबी में है, उसने चेक काट के दिया बी के लिए, बी से कुछ सामान उसने लिया, बी को चेक काट के दिया, लेकिन बी का जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, 1 लाख का चेक काट दिया, तो दैट मीन्स पीएनबी से एसबीआई में 1 लाख रुपए जाने. ऐसे ही सी और डी है, सी का अकाउंट एसबीआई में है, डी का अकाउंट पीएनबी में है. ऐसे ही सी ने डी को पैसे देने हैं 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज. तो अब जो अगला चेक कटा है वो एसबीआई से पीएनबी में जाना है. तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन की बजाय इसको शॉर्ट करके एक ट्रांजेक्शन कर दी कि सीधे ही एसबीआई से पीएनबी में 50,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया. सो ये चेक्स से रिलेटेड या डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड जो भी क्लियर करना होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास सारे ही बैंक्स के जो अकाउंट होता है, रिजर्व है तो होता है, वो पड़ा होता है, तो वो उस टाइम पे क्या करता है, ट्रांसफर एंट्रीज करता है और उनके जो सेटलमेंट्स है, वो क्लेम्स हैं, वो सेटल कर देता है. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ऑल्दो ये हमने आगे पढ़ना है बट थोड़ा सा मैं दे देती हूँ. ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करता है टू कंट्रोल क्रेडिट, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक की. For credit expansion, what we do is central bank floats money in the market, पैसा निकालता है. And for credit contraction, contraction का मतलब खींचना अंदर, कम करना, तो central bank tries to absorb money from the market, money market से बाहर खींचता है, right? ठीक है, लेना वापस लेना, देना नहीं. तो क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होती हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कितना क्रेडिट जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, लाइक open market operations, bank rate policy, repo and reverse repo rate, legal reserve ratio. These we will study in our excess demand and efficient demand chapter, right? Quantitative में volume of credit आ जाता है. This is qualitative. It is misprint here. Quantitative. It is qualitative techniques. Qualitative techniques क्या है? Qualitative. I am saying again, this is not quantitative. Please mind it. This is upper one is quantitative and the below one is qualitative. It is typing mistake from me. It is qualitative techniques. Qualitative techniques or selective credit control techniques are the ones which influence the direction of credit. कहाँ जाना है, margin requirement बना देना, moral suasion, credit rationing, direct action, तो ये सारी चीजें डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट बताती, कहाँ जाना है, किसको देना है और किसको नहीं देना है. क्वांटिटेटिव में कितना, क्वालिटेटिव में किसको. प्लीज आई एम सेइंग अगेन, ये मिस टाइपिंग हो गई है मुझसे. दिस इज qualitative technique or selective control, credit control, and this one is quantitative. So I hope it is clear to you, and in my next video I'll be discussing how commercial bank create credit. So for central bank this is it, इतना ही आपके सिलेबस में अभी है. and about commercial bank आपका सिर्फ इतना है कि commercial bank कैसे credit create करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर. So that we'll be studying in our next video. Thank you. God bless you all.